Hello students, welcome back to our social science class. I am your social science teacher Jyoti Duhan. Today we also continue our civics chapter cycle, constitutional design. Okay, in previous part we discussed about the struggle of the South Africans and how they form constitution for South Africa. They want equality, they want liberty, they want fraternity, and Nelson Mandela appealed to all the citizens of South Africa. We have to forgive whites if we want democratic country. If we want to develop democratic values in our country, we have to forgive whites for their misbehavior. Okay. And 26th April 1994, they unfold the national flag, which is the symbol of that they get freedom from the whites. And now, whites and blacks have equal rights and multiracial government formed in the South Africa. This is all about that we discussed in the previous videos. And today we will discuss, in this part, we will discuss about the making of the Indian Constitution. Okay, before this you have that why we need government. That part we already discussed in the introduction part. That's why I'm not describing again this video that why we need democratic government, because every democratic country should have constitution. Why? Because there should be written laws, because every leader is elected by the citizen of the country, and that leader power should be limited by the constitution. The rules and regulations should be in written form that control the power of citizen and the leaders of that country. That's why we need constitution. Constitution provide that how our government will be formed, what process followed by the citizen of any country, and constitution provide written rights that is important for the citizen of particular country, and constitution also appreciate the people of that country who did work for the welfare of the country. We already discussed in the introduction part what is the meaning of constitution, why we need a constitution, and today we will discuss that making of Indian constitution. In this part we will study about the Indian constitution. Okay, up most of important point that first of all we have to understand the what difficulties faced by the Indian leaders when they formed Indian constitution. It is important. Okay, as we know that we get freedom on 15 August 1947, and that time what Britisher did, they did partition on the basis of religious. Okay, हमारे जो कंट्री था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया था रिलीजियस बेसिस पे, मॉमडन्स एंड हिंदूज, मॉमडन्स विद द पाकिस्तान एंड इंडियंस विद द इंडिया. ओके, दैट partition done by the Britishers. Our country divided into 2 parts, India and Pakistan, and that partition led more than 10 lakh killing because of the basis of religious. This is the important point that if we want our country at a democratic, we have to establish constitution which help us to develop our country. Our constitution will help to provide equality and liberty and fraternity to all the people without any caste, creed and races, gender basis. There will be non-discrimination. This is the important point, that partition on the basis of religious. It is important that it is the one of the most important part of the difficulties when the Indian leader face that which value we have to add in the constitution. Okay. Next is princely and provincial state. Okay, ब्रिटिशर्स ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफिकल्टीज हमारे इंडियन लीडर्स के सामने रखी थी वो क्या थी? प्रिंसली और प्रोविंशियल स्टेट. प्रिंसली और प्रोविंशियल स्टेट के बारे में आप जानते हो. प्रिंसली जो स्टेट्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, हमारे लोकल रूलर्स होते हैं
बट कंट्रोल किनके हाथ में होता था? ऑल द कंट्रोल हैव इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर, बट दे ऑन द यू कैन से दैट सिर्फ नाम मात्र रूलर्स कौन होते थे? हमारे लोकल रूलर्स होते थे. दीज आर नोन एज प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंशियल स्टेट विच आर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स. This is the main difference on the basis of princely and provincially. Princely state are only controlled by the Britisher, but for the public, they have king or queen. But provincially is the states. They are the colony of the Britishers. तो ब्रिटिशर ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या रखा था कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि प्रिंसली स्टेट को इट इज योर चॉइस, यू वांट टू गो विद द पाकिस्तान एंड you want to stay in the India, okay, or it is also your choice, you want to stay in independent state, okay. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर सपोज कीजिए हमारा जैसे क्या है कि हमारे साउथ में क्या है, यहाँ पर हैदराबाद है. हैदराबाद में मोस्ट ऑफ कौन रहते हैं? मोमडन्स रहते हैं, ओके. अब मोमडन्स का यहाँ पर क्या है, अगर वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, क्योंकि रिलीजियस बेसिस पे अगर पार्टीशन हुआ है तो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं. लेकिन यहाँ से पाकिस्तान की तरफ मूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ओके. और इंडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये इंडिपेंडेंट के फेज में रहते हैं तो इनके लिए क्या होगा कि हमारी जो फुल कंट्री है उसको हम कभी भी यूनिटी में नहीं रख सकते. बिकॉज अगर कहीं कहीं पर प्रिंसली स्टेट है, वो इंडिपेंडेंट है, तो हम कंप्लीट इंडिया को एक यूनिटी बेसिस पे रन नहीं कर सकते. दिस इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिफिकल्टी विच इज फेस्ड बाय द our Indian leaders. First is partition on the basis of religious, okay. Second is princely state and provincial state. Britisher give freedom to the princely state. You want to go with the Pakistan, you want to go with the Indians, or it is your choice, you want to rule your state in the independent way. It is the important and most important difficulties in front of the leaders if they want to run a complete India in the single form. This is the important. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोसेस थी वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले स्टार्ट हो गई थी. मोतीलाल नेहरू और उनके साथ जो 8 कांग्रेस के मेंबर्स थे, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या रखा था, उन्होंने एक ड्राफ्ट फॉर्म कर दिया था. ड्राफ्ट आपको पता है रफ वर्क, रिटन रफ वर्क, जिसमें क्या प्रोसेस थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, ओके. ये जो प्रोसेस है ये यहाँ से स्टार्ट हो गई थी 1928 से, और मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर स्टार्ट टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके. नेक्स्ट इज 1931 में द रेजोल्यूशन ऑफ द कराची सेशन ऑफ INC dwelt हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस. अब यहाँ पर क्या है, 1931 में कराची में मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही बात कही गई थी. लीडर्स ने डिस्कस किया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, कि हाउ मच पार्ट्स दे हैव टू डिवाइडेड, कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हमको क्या करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए. और ये सभी जो हमारी मीटिंग्स थी 1928 में मोतीलाल और 8 कांग्रेस लीडर, और 1931 में जो कराची की में जो लीडर्स ने डिस्कस किया था, वहां से जो कहते हैं ना कि बेसिक पॉइंट्स जो निकल के आए थे वो ये थे. बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स कमिटेड टू इंक्लूड, सब दोनों मीटिंग्स में, बोथ मीटिंग्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो बेसिक पॉइंट्स थे, वो क्या थे? UAF यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को हम मोस्ट ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि 18 और 18 अबोव के पर्सन्स जो सिटीजन है कंट्री के, वो वोट कर सकते हैं, अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंट कि हमारे जो सिटीजन है उनको सभी को राइट होना चाहिए कि अपनी जो गवर्नमेंट है उसके लिए वो लीडर्स को चूज कर सके. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी. सभी को जेंडर बेसिस पे, क्लास, क्रीड,
रेसिस बेसिस पे किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के काफी इयर्स के बाद क्या था, वहां पे वुमेन्स को राइट मिला था, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि स्टार्टिंग से ही वुमेन्स को राइट मिल चुके थे। दे हैव टू राइट वोट, फ्रीडम भी थी सभी को अपना जॉब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करने का, स्टडी में मूव करने के लिए, अपने स्टेट में मूव करने के लिए, इक्वालिटी, आप जॉब कर सकते हो, फीमेल मेल डजेंट मैटर। एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, जो ट्राइब्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो हमारे जैन्स हैं, उनके जो भी हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, जो मोमडन्स यहाँ पर रह गए हैं, मोस्ट ऑफ जो मोमडन्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ मूव रह गए, लेकिन जो माइनॉरिटीज में मोमडन्स यहाँ पर हैं उनके राइट्स की तरफ भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बेसिक पॉइंट्स थे ये हमारी मीटिंग्स में से निकल के आए थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1931 में कांग्रेस लीडर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके डिस्कशन के थ्रू ये 3 पॉइंट्स थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 18 और 18 अबो, एंड नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। दिस इज ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया क्या क्या डिफिकल्टीज हमारे सामने आई थी, हमारे लीडर्स के सामने आई थी। फर्स्ट इज पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस। अब जो हमारे कंट्री पाकिस्तान और इंडिया एक ही थी, कंट्री थी, सेम कंट्री थी, अब वो क्या थे, पार्टीशन में डिवाइड हो गए थे, सब कहाँ मूव कर रहे थे। जो हमारे पाकिस्तान में इंडियंस थे वो इंडिया की तरफ मूव कर रहे थे, जो इंडिया में थे मोमडन्स थे वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे थे। और रिलीजियस बेसिस पे क्या हो रहे थे, वहां पर रायोट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, जिसमें बहुत सारे जो पर्सन्स है उनको मारा जा रहा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेकंड, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने प्रिंसली स्टेट को चॉइस दे दी थी, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ मूव करना चाहते हैं, इंडियंस की तरफ मूव करना चाहते हैं। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया। अगर सपोज कीजिए ये जो हैदराबाद है, आप सबको पता है कि एक मोमडन्स एरिया है, अगर ये चॉइस है कि ये पाकिस्तान की तरफ मूव करना चाहते हैं, यहाँ से पाकिस्तान बहुत दूर है, ओके, फार अवे फ्रॉम द हैदराबाद, हाउ दे मूव टूवर्ड्स द पाकिस्तान। अब यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में हमारे ब्राह्मण्स रहते हैं, जो वो अगर जो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, पाकिस्तान उसको अपनी तरफ मिलाना चाहते थे, मर्ज करना चाहते थे, लेकिन वहां पर क्या थे, हमारे जो ब्राह्मण्स थे वो इंडिया में रहना चाहते थे। इस तरह की प्रॉब्लम हमने फेस की है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके जो 8 लीडर्स थे उन्होंने डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे वो। और 1931 में हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने कराची में डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी ये जो मीटिंग्स थी इनमें जो पॉइंट्स निकल के आए थे वो थे हमारा यूएएफ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंच 18 अबो हैव राइट टू गिव टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर्म देयर गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्वालिटी एंड फ्रीडम की बात कही गई थी यहाँ पर। और जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन की बात भी, उनके राइट्स की बात भी यहाँ पर बात कही गई थी। आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।